Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve HTET PGT exam part 4 English portion held on 2nd January 2021. Students, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट 4 इंग्लिश for HTET PGT English exam. As you are well aware that HTET PGT exam is going to be held on 18th December 2021 and this previous year paper will be very helpful for you. So let's start. See the direction. Answer the following questions by selecting the most appropriate option. Read the following passage and answer the questions given below. Question number 91 to 98. Students, here there is a passage for you and you have to read the passage and then answer the questions given below. Questions are related from 91 to 98 to this passage. Students, you have to read this passage on your own because it will take a lot of time if I read this passage here. I will only tell you the answers of question number 91 to 98. Question number 91. Two of the arguments given against deep space travel and mining are: option A, the mineral bounty and spin-off technologies could enrich us all. B, there is no life on asteroids and thus no habitats to trace. C, the space magnificent desolation is not ours to despoil. D, gluttering ourselves on space riches is not an acceptable alternative to developing more sustainable ways of earthly life. Option 1 A and D, option 2 A and B, option 3 B and C, and option 4 C and D. So students, two of the arguments given against deep space travel and mining are option C and option D. Hence our answer becomes 4. 4 is here correct. C and D are the correct answer. Two of the arguments given against deep space travel and mining are: the space magnificent desolation is not ours to despoil, and glutting ourselves on space riches is not an acceptable alternative to developing more sustainable ways of earthly life. C and D. Now question 92. The word hold in the fourth paragraph most nearly means: option 1 maintain, option 2 grip, option 3 restrain and option 4 withstand. तो यहाँ पर जो होल्ड है आपका फोर्थ पैराग्राफ में, उसका मोस्ट नियरली मीनिंग है मेंटेन. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 93. व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज कॉमा हैज हार्डली बीन डिस्कस्ड? ऑप्शन 1 क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्पेस. ऑप्शन 2 द मिनरल बाउंटी अवेलेबल इन स्पेस दैट वुड एनरीच अस ऑल. ऑप्शन 3 that such barren environments are worth preserving. Option 4 that a lot of people will walk through the space pristine environment. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन स्पेस हैज हार्डली बीन डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ 94. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ फ्रैगमेंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैगमेंट्री का एंटोनिम नहीं है? फर्स्ट होल, सेकंड टोटल, थर्ड अनब्रोकन और फोर्थ पीस मिल. तो स्टूडेंट्स, जो होल, टोटल और अनब्रोकन ये तो जो हैं फ्रैगमेंट्री के एंटोनिम हैं, लेकिन जो पीस मिल है वो फ्रैगमेंट्री का एंटोनिम नहीं है. ऑप्शन 4 करेक्ट है. नाउ 95. द मेन पर्पज ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इज टू: फर्स्ट, highlight the importance
of concordance among space miners. 2. Avoid regulation in space mining. 3. Dispute the claims and investments of the space miners. 4th, focus on the reluctance of the space miners to risk investments in space mining. The correct answer is option 1. Highlight the importance of concordance among space miners. तो जो हमारा लास्ट जो पैराग्राफ है उसका मेन पर्पज है highlight the importance of concordance among space miners. First option is correct. Now question number 96. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? First option, space miners, like their earthly counterparts, are often, reluctant to engage with such questions. Second one speaker concluded that regulation should be avoided. Third, the resources that are valuable in orbit and beyond may be very different to those we prize on Earth. Fourth, without consensus, claims will be disputed, investments risky, and the gains made insecure. Students, here fourth option is the correct answer. Option 4 provides the best evidence for the answer to the previous question. Now question 97. Fill in the blank in the given sentence with the appropriate word from the passage. She believes that dash of the environment is everyone's responsibility. First, consensus. Second, stewardship. Third, discovery. Fourth, mining. The correct answer is option 2, stewardship. She believes that stewardship of the environment is everyone's responsibility. Now question 98. The central claim of the passage is that space mining has positive potential but. जो पैसेज का जो सेंट्रल क्लेम है, जो प्रमुख दावा है, वो ये है कि स्पेस माइनिंग हैज पॉजिटिव पोटेंशियल बट. फर्स्ट ऑप्शन, इट विल एंड अप एनकरेजिंग ह्यूमैनिटीज रेकलेस ट्रीटमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. सेकंड, इट्स इफेक्ट्स should be thoughtfully considered before it becomes a reality. Option 3, such potential may not include replenishing resources that are disappearing on Earth. Fourth, experts disagree about the commercial viability of the discoveries it could yield. Correct answer is option 2. Its effects should be thoughtfully considered before it becomes a reality. इसके प्रभावों को पर थॉटफुली जो है विचार करना चाहिए इससे पहले कि ये रियलिटी बने. नाउ क्वेश्चन 99. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स आर नॉट सिनोनिमस टू ईच अदर. पैसेज से संबंधित क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर एक दूसरे से सिनोनिमस नहीं है, यानी उसका सिमिलर मीनिंग नहीं है. फर्स्ट, लोक्वेशियस टॉकेटिव, it is synonymous. Second, phlegmatic excitable. This pair of word is not synonymous to each other. Hence our answer is option 2, phlegmatic excitable, but we shall see other options also. 3, pompous conceited, yes, synonymous to each other. 4th, indefatigable, tireless, yes, synonymous to each other. So I have already told you the answer. Phlegmatic, excitable are not synonymous to each other. Option 2 becomes correct. Now question 100. The Sokolsky mentioned in Tishani Doshi's Journey to the End of the Earth is: first, a submarine capable of independent operation underwater. Second, the helicopter that was used to rescue passengers from the stranded ship. Third, a research ship for Arctic and Antarctic expedition. Fourth, the miracle airplane that can land on water. So correct answer is option 3, a research ship for Arctic and Antarctic expedition. Now question 101. Which of the following sentence is grammatically correct? First, the state of his affairs were such as to cause anxiety to his creditors. Second, the rise and fall of the tide is due to lunar influence. Third, the chairman with the directors are to be present. Fourth,
Sanskrit as well as Arabic were taught there. So students, option 2, the rise and fall of the tide is due to lunar influence. This sentence is grammatically correct. Now question 102. Identify the sentence or sentences with adjective phrases. A. The boy with the red sleeve fell to the ground. B. The boy who is smiling is my friend. C. The elephant which is chained belongs to the temple. D. She bought the house with the large painted glass windows. Option 1 only sentence A. Option 2 sentences B and C. Option 3 sentences A and D. Option 4 sentences A, B, C and D. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वो सेंटेंसेस पहचानने हैं जिनमें एडजेक्टिव फ्रेज हो. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेंटेंस ए है, द बॉय विद द रेड स्लीव फेल टू द ग्राउंड, और हमारा सेंटेंस डी है, शी बॉट द हाउस विद द लार्ज पेंटेड ग्लास विंडोज. यहाँ पर हम एडजेक्टिव फ्रेज देखते हैं और ए और डी मिलते हैं हमारे को सेंटेंसेस ए एंड डी, वो ऑप्शन 3 में. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, सेंटेंसेस ए एंड डी. नाउ क्वेश्चन 103. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस? ही वॉज विजिबली मूव्ड. विजिबली इज द अंडरलाइंड वर्ड. फर्स्ट apparently, सेकंड noticeably, थर्ड imperceptibly और फोर्थ obviously. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विजिबली के जो मीनिंग्स हैं वो है apparently ऑप्शन 1, noticeably ऑप्शन 2 और obviously ऑप्शन 4. ये तो जो है मीनिंग है अंडरलाइन वर्ड के, लेकिन ऑप्शन 3 में जो imperceptibly है वो विजिबली का मीनिंग नहीं है. तो यही हमसे पूछा गया है, which of the following does not mean the same as the underlined word in the given sentence? तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है. Now question 104. Which of the following is not an example of an oxymoron? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल नहीं है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन 1 डेलिब्रेट मिस्टेक, ऑप्शन 2 फुलिश इडियट, ऑप्शन 3 ओरिजिनल कॉपी और ऑप्शन 4 जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड मैस. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन फुलिश इडियट जो है वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल नहीं है. तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन 105. विच लाइन्स फ्रॉम एलिजाबेथ जेनिंग्स होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. एलिजाबेथ जेनिंग्स पोएम डू नॉट फोकस ऑन द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एलिजाबेथ जेनिंग्स की कौन सी लाइन पोएम की डू नॉट फोकस ऑन द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन, जो फादर एंड द सन के मध्य जनरेशन गैप को फोकस नहीं करती, तो वो है हमारा ऑप्शन 3. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द हाउस ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 106. आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. निम्नलिखित वाक्य का हमें करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करना है. दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स. फर्स्ट ऑप्शन, दे लाफ्ड एंड ऑब्जेक्टेड टू हिज वार्निंग्स एंड प्रपोजल्स रिस्पेक्टिवली. सेकंड, एट हिज वार्निंग्स, they laughed and to all his proposals, they objected. Third, his warnings were laughed at and all his proposals were objected to. Fourth, at his warnings they were laughing and to all his proposals they were objecting. तो देखें सेंटेंस, दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग्स, वे उसकी वार्निंग पर हंसे, एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल्स, और उसके सारे प्रपोजल्स पर जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन किया. तो आप देखें यहाँ पर कि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में करना है तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है. तो अब देखेंगे हिज वार्निंग से स्टार्ट करेंगे, फिर वर आ जाएगा,
फिर laughed at, and all his proposals were objected to। तो आप देखिए कि हमने जो है laughed का वर laughed कर दिया और objected से पहले वर लगा दिया तो वर objected हो गया। तो his warnings were laughed at and all his proposals were objected to। ये मिल रहा है हमारे को ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, ये हमारा करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन है। नाउ क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट, हेल इज रेटलिंग अपॉन द रूफ। सेकंड, द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई। थर्ड, द बेकन sizzled in the pan. Fourth, the creak of the branches in the icy wind made me shiver। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 they are examples of onomatopoeia, but option 2 the kingfisher flew fast like a piece of the blue sky ये आपका यहाँ पर सिमली है, ये ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 108, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन She is all states and all princes. I, nothing else is. Princes do but play us. Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. First simile, second metaphor, third epithet और fourth synecdoche। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। ऑप्शन 2 करेक्ट। Now next question 109, choose the correct phrasal verb to complete the following sentence। The students laughed and dashed from him। First, closed down, second, dropped in, third, fell apart, fourth, edged away। The correct answer is option 4, edged away। The students laughed and edged away from him। ये हमारा करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, edged away। ऑप्शन 4 करेक्ट। Now question 110, which of the following words is a noun। First, arrive, सेकेंड असेंबल, थर्ड डिस्टर्बेंस और फोर्थ ऑब्जर्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नाउन है। तो अराइव आपका वर्ब है, असेंबल भी यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जर्व भी वर्ब है। तो डिस्टर्बेंस जो है वो आपका नाउन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नाउन है, वो है डिस्टर्बेंस। ऑप्शन 3 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, इनकरेक्ट। Which of the following sentences are grammatically incorrect? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, जो सही नहीं हैं। A, do you play the cricket at school? B, she has danced for 2 hours last night. C, he gave his brother a typewriter. D, she is the smartest girl in our class। First sentence is A and B, second sentence is B and C, third sentence is C and D, फोर्थ सेंटेंस इज ए एंड डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सेंटेंस सी ग्रामेटिकली करेक्ट है, डी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ए जो है वो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर द नहीं आना चाहिए। डू यू प्ले क्रिकेट एट लास्ट नाइट। और जो आपका बी ऑप्शन है, सी हैज डांस फॉर 2 hours लास्ट नाइट, ये भी गलत हो जाते हैं। लास्ट नाइट जब आ जाता है तो सेकंड फॉर्म लगती है डांस। तो अगर मान लो फॉर 2 hours लगाते हैं तो फिर हम ये कह सकते थे कि सी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। तो ये आपके जो हैं ए और बी वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। तो सेंटेंसेस ए एंड बी हमारा आंसर है, वो मिलता है ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट है। नाउ क्वेश्चन 112, व्हेन हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, हाउ मेनी डेज हैड it been since Santiago last caught a fish? First 77 days, second 3 days, third 84 days और fourth 48 days। Correct answer is 84 days। Option 3 is correct। Now question 113, choose the correct indirect speech of the following। The general, addressing his mutinous troops said, you have brought disgrace upon a famous regiment. If you had grievances, why did you not lay them before your own officers? Now you must suffer punishment for your offense before your complaints can be heard। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है
वो करेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, द जनरल टोल्ड हिज म्यूटिनस ट्रूप्स दैट दे हैड ब्रॉट डिस्ग्रेस अपॉन अ फेमस रेजिमेंट इफ दे हैड ग्रीवेंसेस, why had they not laid them before their own officers? Now they must suffer punishment for their offense before their complaints could be heard. Option 1 is correct. Now question 114. Identify the sentence with the following pattern: subject plus verb transitive plus noun oblique pronoun plus present participle phrase. Option 1, they saw the thief running away. Option 2, he will need looking after. Option 3, he began talking about his family. Option 4, he prefers walking to going by car. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है दे सॉ द थीफ रनिंग अवे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ट्रांजिटिव प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. ऑप्शन 1, दे सॉ द थीफ रनिंग अवे. 115. Which of the following sentences in the active voice? First, wolves have been seen in the streets. ये पैसिव वॉइस में है. सेकंड, द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड. ये भी पैसिव वॉइस में है. थर्ड, द ओल्ड न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन अवे. ये भी पैसिव वॉइस में है. आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू. ये एक्टिव वॉइस में है. तो यही आपका आंसर हो जाता है. ऑप्शन 4 करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 116. विच पार्ट इज इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस? As far as the export of wildlife is concerned. Second, this is luckily a subject. On which opinion? Third, do not stop at political boundaries. Fourth, thinking people of Europe are just as disturbed by the depletion of Indian wildlife as we are. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 3 में जो पार्ट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन 3, do not stop at political boundaries, this part is incorrect in the given sentence. Now question 117. which is the odd one out sentence pattern? सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से कौन सा जो है ऑड वन आउट है यानी अलग है? फर्स्ट, दे डिड वेरी लिटिल वर्क दैट डे. सेकंड, वी शैल मेक एन अनाउंसमेंट टुमारो. थर्ड, I can't stand traveling in the rush hour. Fourth, the company has bought several new aircraft. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से सिमिलर है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है I can't stand traveling in the rush hour, this is the odd one out according to sentence pattern. Option 3 is correct. Now question 118. which of the following is not an abstract noun? निम्नलिखित में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो फर्स्ट, गुडनेस, यस दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाफ्टर, दिस इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्लेवरी, दिस इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुडनेस का मतलब अच्छाई, लाफ्टर का मतलब हंसी, स्लेवरी का मतलब दास्ता या गुलामी, और ब्यूटीफुल जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है. 119. in which of the following sentences given below the word panel is used in a different sense than the others? First option, Judge H. Hobart Grooms told the jury panel he had heard the reports. Option 2, the masks from Baba village in Mali look like long panels of decorated wood. Third, the panel is laying the groundwork for an international treaty. Fourth, though the many round tables, workshop and panel discussions, a consensus was reached. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में पैनल जो है सेम सेंस में यूज किया गया है, लेकिन जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर पैनल आपका डिफरेंट सेंस में यूज किया गया है. तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नाउ सी डायरेक्शन. Choose the correct word to fill in the blank in the given sentences. Question numbers 120 and 121. Question 120. Watching that cookery program on TV has really dashed my appetite for trying some new recipes. First, watered. Second, welted. Third, wetted. Or fourth, weighted. So students, option 3, wetted is the right answer. Now question 121. The party was really disruptive. The neighbors pleaded dash for them to turn the music down. First, ineffectually. Second, noisily. Third, hastily. Or fourth, severely. The party was really disruptive. The neighbors pleaded ineffectually.
तो करेक्ट आंसर हो जाता है इनफेक्चुअली फॉर देम टू टर्न द म्यूजिक डाउन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 122, इन टेनिसन्स पोएम टाइटल्ड यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड? ऑप्शन 1, he is content in ruling his people after being away for a long time. Second, he doesn't like the manner in which his son Telemachus has ruled the land in his absence. Third, he is thoroughly discontented and yearns to travel and explore again. Fourth, he reveres his homeland and is happy to be reunited with his wife, son and his people. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, he is thoroughly discontented and yearns to travel and explore again. Now question 123, in William Shakespeare's play The Merchant of Venice, what condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the caskets in order to marry Portia? First, that if he chooses wrong, he will give all his wealth to Portia and live forever. Second, that if he chooses wrong, he will never marry. Third, that if he chooses wrong, he will have to marry a woman of Portia's choosing. Fourth, that if he chooses wrong, he will become Portia's स्लेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू, कौन सी कंडीशन को प्रिंस ऑफ मोरक्को को एग्री होना चाहिए बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्शिया? सेकंड ऑप्शन, दैट इफ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 124, पिक द ऑड वन आउट, हमको चारों में से जो है जो ऑड वन है जो अलग है उसको जो है फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सुप्रीम, सेकंड अनपैरेलल्ड, थर्ड पैथेटिक और फोर्थ स्टर्लिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन सुप्रीम, सेकंड अनपैरेलल्ड और फोर्थ स्टर्लिंग ये सारे सेम हैं। ऑड वन जो है वो है पैथेटिक, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाता है। नाउ 125, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया से डील नहीं करता? फर्स्ट, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो डील करता है। सेकंड, भीषम साहनीज तमस, ये भी डील करता है। थर्ड, बप्सी सिद्धवाज आइस कैंडीमैन, ये भी डील करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया से। लेकिन जो फोर्थ है मुंशी प्रेमचंद गोदान, दिस डज नॉट डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हेंस आवर आंसर इज 4, मुंशी प्रेमचंद गोदान। नाउ क्वेश्चन 126, which of the following sentences does not have an adverb plus adjective combination? निम्नलिखित में से किस वाक्य में adverb plus adjective combination नहीं है? फर्स्ट, Alexa thought the new cafe would be cheap but it is extremely expensive. Second, my friend's brother was injured in an accident and the police were incredibly helpful. Third, look at Sahil's car, it's been completely destroyed. Fourth, the room had been painted in a strange way. The walls were unusually flamboyant. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 3 में सेंटेंस है लुक एट साहिल्स कार, इट्स बीन completely destroyed. This sentence does not have an adverb plus adjective combination. Option 3 is right answer. Now, which of the following is misspelled? First, camaraderie. Second, circumlocution. थर्ड, कमेंसुरेट. फोर्थ, कॉम्पंक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 4 में जो कॉम्पंक्शन की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, ये मिसस्पेल्ड है, और ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्टली स्पेल्ड है। नाउ क्वेश्चन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वाइस? निम्नलिखित में किसने जो है बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर 2 बार जीता है? नंबर 1, रूथ ब्रावर झाबवाला, नंबर 2, आयरिश मुर्दॉक, ऑप्शन 3, माइकल ओनदाचे, ऑप्शन 4, मार्गरेट एटवुड। तो मार्गरेट एटवुड जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी? ए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बी, हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी, शांताराम। सी एंड डी आर नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी, और सी और डी मिलते हैं ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स हैज नॉट बीन करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड फोनेटिकली?
फर्स्ट एलियन, सेकंड एक्टिव, थर्ड एलर्जी और फोर्थ एब्सर्ड। तो स्टूडेंट्स एलर्जी को जो है करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड नहीं किया गया है फोनेटिकली जो है, तो द वर्ड एलर्जी हैज नॉट बीन करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड फोनेटिकली। थर्ड ऑप्शन एलर्जी। नाउ क्वेश्चन 131, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 and 2019 has been given to A. Olga Tokarczuk, B. Orhan Pamuk, C. Peter Handke और D. Kazuko Ishiguro। तो ऑप्शन ए और सी, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 एंड 2019 2018 और 2019 में दिया गया है ओल्गा तोकारचुक को और काजुको, और सॉरी ये है इसका पीटर हैंडके। ऑप्शन ए ओल्गा तोकारचुक और ऑप्शन सी पीटर हैंडके, इनको जो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है 2018 और 19 का। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। ए और सी मिलते हैं हमारे को थर्ड में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट आते हैं 132 पे, विच इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड फोटोग्राफ। तो इंग्लिश वर्ड फोटोग्राफ का जो करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है ऑप्शन 1 में। दिस इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड फोटोग्राफ। आंसर इज ऑप्शन 1। Now 133, identify the sentence with the noun clause from the given sentence. A. Who will be selected for the post is not certain. B. He came to tell me that the school was closed. C. The gift that Ravi brought was the best. D. We went into the room where everyone had gathered. हमें उन वाक्यों को आइडेंटिफाई करना है जो कि नाउन क्लॉज से हैं निम्नलिखित वाक्य में से। तो स्टूडेंट्स, हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज नॉट सर्टेन और ही केम टू टेल मी दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड, ये सेंटेंसेस हैं नाउन क्लॉज वाले। तो ये मिलते हैं हमारे को ऑप्शन 2 में, सेंटेंसेस ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। Now question 134, which work of William Wordsworth is generally considered to be his magnum opus? First, The Excursion. Second, Preface to the Lyrical Ballads. Third, Guide to the Lakes. Fourth, The Prelude. Correct answer is option 4, The Prelude. 135, which of the following statements are false? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य जो हैं वो फॉल्स हैं, गलत हैं? तो स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन, द लेटर एस रिप्रेजेंट्स 4 डिफरेंट साउंड्स इन द 4 इंग्लिश वर्ड्स। सी, सुगर, नोज एंड विजन। बी, द फर्स्ट कंसोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड ओशियन इज द सेम एज द लास्ट कंसोनेंट साउंड इन द इंग्लिश वर्ड पुश। सी, द इंग्लिश वर्ड हाई बिगिन्स एंड एंड्स विद द सेम साउंड। डी, द इंग्लिश वर्ड्स वॉइस एंड नॉइज एंड विद द सेम कंसोनेंट साउंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे आपके ए और बी तो ट्रू हैं, लेकिन सी और डी जो हैं वो फॉल्स हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट सी एंड डी आर फॉल्स। नाउ 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ए, द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड विंडो इज नॉट द सेम एज द फाइनल साउंड इन इट, though the word begins and ends with the same letter of the alphabet. B, the vowel in the English word caught and that in the English word fool are articulated with the same degree of lip rounding. C, the letter U in English always represents the same sound in English words. D, the letter S in the English word sugar represents the same sound as the letter T in the word nation. TI. First only statement A is correct. Second only statement B is true. Third statements A and D are true. Fourth statements B and C are true.
हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो आपका ए है और जो आपका डी है ये ट्रू हैं और बी और सी जो है फॉल्स हैं। तो ए एंड डी ट्रू हैं, ये मिलते हैं हमारे को ऑप्शन 3 में। स्टेटमेंट्स ए एंड डी आर ट्रू, हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ 137, इन सैमुअल टेलर Coleridge's poem, The Rime of the Ancient Mariner, what happened shortly after the albatross appeared? First, the ancient mariner drove away the albatross. Second, the ice cracked and the ship was able to steer through. Third, the ice caved in suddenly and killed all except the ancient mariner. Fourth, slimy creatures appeared in the water surrounding the ship. Second option, the ice cracked and the ship was able to steer through. तो आइस क्रैक हो गई और शिप वॉज एबल टू स्टीयर थ्रू। दिस हैपेंड शॉर्टली आफ्टर द एल्बेट्रॉस अपीयर्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 138, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। फर्स्ट मेटाफर, सेकंड पर्सोनिफिकेशन, थर्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट और फोर्थ एपिग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ 139, इन आर के नारायण्स नेम व्हाट डू द इनिशियल्स आर के स्टैंड फॉर। जो आर के नारायण हैं, जो जिन्होंने द गाइड लिखा था, द फेमस नॉवलिस्ट, तो उनके नाम में आर के का क्या अभिप्राय है। फर्स्ट, रासीपुरम कृष्णा स्वामी। सेकंड, रामान्य पालेम कृष्णन। थर्ड, रामास्वामी कृष्णाति। फोर्थ, रमनकारी कृष्ण स्वानिम। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 रासीपुरम कृष्णा स्वामी करेक्ट है। इन आर के नारायण्स नेम व्हाट डू द इनिशियल्स आर के स्टैंड फॉर। रासीपुरम कृष्णा स्वामी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 140, Pearl S. Bucks the enemy deals with A. Conflict between man's human feelings and the prejudices created by nations at war. B. The conflict between a man's duty towards the state and towards his own conscience. C. The real enemy, deeply bigoted and blindly prejudiced citizens so consumed by their nationalist patriotism that everybody who is not a countryman is deemed inferior at birth. D. The universality of human race. First, statements A and B. Second, statements A and C. Third, statements A, B and D. Fourth, statements A, B, C and D. तो पर्ल एस बक्स का जो एनिमी है वो चारों से ही डील करता है, A, B, C, D से। चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है स्टेटमेंट्स A, B, C and D. Pearl S. Bucks the enemy deals with all the 4 given options. Now question 141, match the words with their descriptions. तो स्टूडेंट्स एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, तो जिसका मतलब हो जाएगा डिसबिलीवर इन गॉड, तो ए मैच हो जाएगा 3 से। एसेटिक का मतलब होता है वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, तो बी हो जाएगा 4 से मैच। और सी पेडांट, वो हो जाएगा वन हु इज ऑस्टेंशियस अबाउट हिज लर्निंग, तो आपका सी हो जाएगा 1 से। और डी साइकोफेंट, ये हो जाएगा वन हु एडुलेट्स, ये सेकंड से मैच हो जाएगा। तो A3, B4, C1, D2 ये हमारे को मिलते हैं ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 142, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। निम्नलिखित में से कौन से कॉम्प्लेक्स वाक्य हैं। तो स्टूडेंट्स ए, इन द ग्रीन वेज देयर वर 4 डेड रोजेस, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ, फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock to 12 o'clock, ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। सी, इफ इट डजंट रेन वी विल श्योरली कम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ए एंड बी, सेकंड सेंटेंस इज बी एंड सी, थर्ड सेंटेंस इज सी एंड डी, फोर्थ सेंटेंस इज बी, सी एंड डी। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस सी और डी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं आपके,
तो सी और डी मिलते हैं ऑप्शन 3 में. सेंटेंस इज सी एंड डी. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 143. Which of the following examples in reported speech is grammatically incorrect? First, the mayor said that it gave him great pleasure to be there that evening. Second, he said that he would go as soon as it was possible. Third, he said that he does not wish to see any of them and ordered them to go away. Fourth, my teacher often says to me that if I don't work hard, I shall fail. तो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि निम्न किसमें से कौन सा एग्जाम्पल रिपोर्टेड स्पीच में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि ऑप्शन 1, 2 और 4 जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर आप देखेंगे कि डज दे रखा है जो इसकी जगह डिड आना था. ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे. तो ये आपका जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ऑप्शन 3 इज द आंसर. नाउ 144. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. निम्नलिखित वाक्य में फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें. ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट. फर्स्ट क्लाइमैक्स, सेकंड मेटोनिमी, थर्ड मेटाफर और फोर्थ ऑक्सीमोरॉन. तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरॉन जो है फोर्थ, वो आपका राइट आंसर है. ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर. Now 145. Which of the following words does not refer to a manner of walking? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वॉकिंग करने के मैनर को रेफर नहीं करता? फर्स्ट हैगल, सेकंड ट्रज, थर्ड स्ट्राइड और फोर्थ वेडल. तो स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन ट्रज, थर्ड स्ट्राइड और फोर्थ वेडल, all these options, second, third and fourth, refer to a manner of walking, but option 1 haggle does not refer to a manner of walking. Therefore answer is option 1 haggle. Now question 146. In Kalki's story The Tiger King, how does the Maharaja appease the British officer who wished to hunt tigers in Pratibandhapuram? First, the Maharaja sent expensive diamond rings to the British officer's good lady. Second, the Maharaja gave 2 lakh rupees to the high ranking British officer. Third, the Maharaja organized a boar hunt for him. Fourth, the Maharaja accompanied the British officer on hunt and killed the tiger. तो स्टूडेंट्स, इन कल्कि's story The Tiger King, how does the Maharaja appease the British officer who wished to hunt tigers in प्रतिबंधापुरम का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, the Maharaja sent expensive diamond rings to the British officer's good lady. Option 1 is correct. Now 147. Identify the underlined part of speech in the following sentence. जो underlined part है, underlined जो हमारा यहाँ पर part है, उसमें जो part of speech है उसको जो है find out करना है. तो यहाँ पर underline किया हुआ है word scarcely को, और scarcely यहाँ पर part of speech है. आपको पता है part of speech जो है 8 होते हैं: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. तो यहाँ पर scarcely क्या है, आपको यहाँ पर 4 पार्ट ऑफ स्पीच दे रखे हैं, मैंने आपको 8 बता दिए हैं. फर्स्ट वर्ब, सेकंड एडवर्ब, थर्ड एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन. तो scarcely जो है वो आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है. द डिफिकल्ट चाइल्ड scarcely touched the green vegetables on her plate. तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच जो scarcely है वो आइडेंटिफाई अगर हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को, कि जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन यही है हमारा कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. निम्नलिखित वाक्य में जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आइडेंटिफाई करें. तो वो स्केर्सली है, स्केर्सली एडवर्ब है, आपका क्रिया विशेषण है. डायरेक्शन, मैच द इडियम ऑन द लेफ्ट विथ इट्स डेफिनेशन ऑन द राइट. क्वेश्चन नंबर 148 एंड 149. क्वेश्चन नंबर 148 और 149 में हमने इडियम्स को मैच करना है और उसके लेफ्ट में जो है उसकी विथ मैच द इडियम ऑन द लेफ्ट, जो इडियम है वो लेफ्ट में है, और विथ इट्स डेफिनेशन ऑन द राइट, और राइट में उसकी डेफिनेशन है. तो उसको मैच करना है हमें. इडियम ऑन द लेफ्ट साइड एंड डेफिनेशन ऑन द राइट साइड, दोनों को मैच करना है. क्वेश्चन 148. ए हैव इची फिट. तो हैव इची फिट का मतलब होता है बी रेस्टलेस ऑब्लिक वांट टू ट्रेवल, तो ये हो जाएगा 2. बी है गेट
कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है रिग्रेट अ डिसीजन, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन 4 के साथ। और सी है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, तो ये जाएगा फर्स्ट के साथ। और फाइंड योर फीट, इसका मतलब होता है फील फैमिलियर विद समथिंग, ये जाएगा थर्ड से। तो ए आपका जो है 2, B4, C1 और D3, A2, B4, C1, D3 ये मिलते हैं आपको ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 149, टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है टू बिकम लेस रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, तो ये जाएगा ऑप्शन 3 से। टू फेस अप टू, इसका मतलब होता है टू डील विथ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इन ए डायरेक्ट वे, ये जाएगा फर्स्ट से। सी इन द फेस ऑफ इट, इन अ सिचुएशन वेयर देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और डेंजर्स, ये जाएगा 4 से। और डी है ऑन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है हाउ ए सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस, कि सरफेस के ऊपर कोई सिचुएशन कैसे दिखाई देती है, तो A3, B1, C4, D2, A3, B1, C4 और D2 ये मिलते हैं आपको ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन से वुमेन राइटर्स को जो है नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। ए पर्ल एस बक, बी टोनी मॉरिसन, सी एलिस मुनरो और डी मार्गरेट एटवुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ए, बी एंड सी। पर्ल एस बक, टोनी मॉरिसन और एलिस मुनरो को जो है नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। So students, today we solved 60 questions of HTET PGT English exam held on 2nd January 2021. These 60 questions were of English language and literature, specifically meant for those candidates who applied for HTET PGT English exam. These questions will be very helpful for you in the coming HTET exam to be held on 18th December. HTET PGT exam is going to be held on 18th December and TGT and PRT will be held on 19th December. तो स्टूडेंट्स ये जो पेपर आज हमने सॉल्व किया, जो HTET PGT इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करेंगे वो ये पेपर देखेंगे तो उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। If you like this video, please share this video and also subscribe the channel. Thank you.